بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کیلیفورنیا امریکہ سے مخصوص ساجد، اس وقت کی تازہ خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، مبینہ طور پر اطلاع ہے کہ پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر بھارتی فضائیہ کا کواد کاپٹر مار گرایا ہے۔ پاک فوج نے 25 فروری 2024 کو دن 12:55 پر لائن آف کنٹرول پر پاکستانی علاقے کی جاسوسی کرنے والے بھارتی فضائیہ کے کواد کاپٹر کو مار گرایا ہے۔ بھارتی فضائیہ کے کواد کاپٹر کو مار گرانے کے بعد پاک فوج نے اس کی باقیات تلاش کرنا شروع کر دی ہیں۔ 26 فروری کو لائن آف کنٹرول میں کواد کاپٹر کی باقیات پاک فوج کو مل گئی ہیں۔ کواد کاپٹر پر بھارتی فضائیہ کی ایک یونٹ کا نشان بھی موجود ہے، جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ کواد کاپٹر بھارتی فضائیہ کا ہی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ 27 فروری 2019 کو پاک فضائیہ نے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے بھارتی جنگی طیاروں کو بھی آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ میں مار گرایا تھا۔ ناظرین، یہ کواد کاپٹر جو ہوتا ہے یہ ایک جاسوسی کرنے والا اپنا ہیلی کاپٹر نما جہاز ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاکستانی علاقے کی جاسوسی پر مامور تھا، یہ کر رہا تھا کہ ہماری پاک فوج کو اس کا پتہ چل گیا، تو پھر انہوں نے بر وقت کارروائی کر کے اس کو مار گرایا ہے۔ یہ 25 فروری کا واقعہ ہے۔ یہ تو پھر اس کا ملبہ جو تھا وہ ظاہری بات ہے بکھر گیا تھا ادھر ادھر، جس کو اگلے دن 26 تاریخ کو تلاش کر لیا گیا، جس میں باقاعدہ بتا رہے ہیں کہ انڈین فضائیہ کی ایک یونٹ کا نشان ہی بنا ہوا ہے، جس سے وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کواد کاپٹر جو ہے یہ انڈیا کا ہی ہے۔ ناظرین، پنجاب کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے لاہور میں ایک مقام پر ٹریفک روکنے پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ ٹریفک مینجمنٹ ٹھیک کریں، شہریوں کو اس سلسلے میں کوئی تکلیف یا دقت نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے 8:15 بجے صبح رائمنڈ سے دفتر کے لیے سفر شروع کیا تھا، روانہ ہوئی تھی اور 9 بجے دفتر پہنچ گئی تھی۔ ناظرین، یہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کا بالکل لل صبح دفتر کے ٹائم پہ اینڈ ٹائم پہ نکلی ہیں، 8:15 بجے گھر سے، اور 9 بجے قریب رائمنڈ پہنچ گئی ہیں۔ تو راستے میں انہوں نے مختلف جگہ پہ ٹریفک کو رکا ہوا پایا، تو اس پہ انہوں نے بڑی برہمی کا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ سرکاری پروٹوکول کی وجہ سے ٹریفک کو نہیں روکنی چاہیے لوگوں کا، تاکہ حرج نہ ہو، لوگوں کو دقت نہ ہو، تو یہ اپنی ٹریفک مینجمنٹ جو ہے ٹھیک کریں۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے مرکزی میڈیا ڈپارٹمنٹ کے مطابق پی ٹی آئی کی جانب سے خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر ڈاکہ عوامی مینڈیٹ لوٹنے کی شرمناک حرکت قرار دیا ہے۔ یعنی یہ ان کا جو عالمی مرکزی جو ڈپارٹمنٹ ہے پی ٹی آئی کا، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ عوامی مینڈیٹ پر جو ڈاکہ ہے یہ ایک شرمناک حرکت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عوامی مینڈیٹ پر کھلا ڈاکہ ڈالنے والے الیکشن کمیشن ایک شرمناک سہولت کاری سے خصوصی نشستوں کو غیر آئینی طور پر مینڈیٹ چوروں میں بانٹنے کے
नाकाबिल कबूल मंसूबे बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो मंसूबे बन रहे हैं कि हमारी मखसूस ख़वातीन की नशिस्तें और अक़लियती नशिस्तें दूसरी सियासी पार्टियों में बांट दी जाएंगी, तो ये नाकाबिल कबूल मंसूबा है। मज़ीद कहा गया है कि दस्तूर का आर्टिकल 51 मखसूस नशिस्तों के बुनियादी असूलों को नहायत सराहत से बयान करता है। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों को जनरल सीटों के तनासब से ही तकसीम होना होता है। तो ये उन्होंने जो है पीटीआई के तर्जुमान ने दस्तूर के आर्टिकल 51 की तरफ तवज्जो मबजूल कराई है इलेक्शन कमीशन की, कि उसके मुताबिक जो मखसूस नशिस्तें हैं उनका बुनियादी असूल जो है उसमें बड़ा वाज़ेह है। तो ये ख़वातीन और अक़लियत की जो नशिस्तें हैं मखसूस, उनको जनरल सीटों के तनासब से ही तकसीम होना होता है। तो इस लिहाज से चूँकि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं, वो एक पार्टी बन चुके हैं, लिहाजा ये उनका जो मखसूस कोटा है अक़लियतों का और ख़वातीन का, वो उनको अलाट किया जाए। नाज़रीन, उन्होंने मज़ीद कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मरकज़, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा नशिस्तें रखने वाली पार्लिमानी जमात है, लिहाजा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों की फराहमी में लैतो लाल अक्सरियत को गैर कानूनी तौर पर जबरन अक़लियत में बदलने के गैर आइनी और गैर जमहूरी मंसूबे का हिस्सा है। जमहूरियत को गैर आइनी और गैर कानूनी अज़ाइम का असीर बनाकर अवाम के मैंडेट को पामाल करने की इजाज़त हरगज़ नहीं देंगे। उन्होंने मज़ीद कहा है कि जाली फार्म 47 के ज़रिए छीनी गई कौमी व पंजाब असम्बली की नशिस्तें भी वापस लेंगे और मखसूस नशिस्तों के गैर आइनी बंदरबांट की भी भरपूर मज़ामत करेंगे। नाज़रीन, बैरिस्टर अबूज़र सलमान न्याज़ी ने कहा है कि जो आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाला से ख़त इलेक्शन कमीशन की तरफ से सर्कुलेट किया जा रहा है, वो ख़त उन्होंने रिज़र्व सीटों के हवाले से नहीं लिखा था, बल्कि वो ख़त जनरल इलेक्शन में ख़वातीन को 5% टिकटें देने के इलेक्शन कमीशन के एक ख़त के जवाब में भिजवाया गया था, जिसे अब इलेक्शन कमीशन गलत बयानी से काम लेते हुए ख़वातीन और अक़लियतों की हमारी सीटें रोकने का जवाज़ बना रहा है। यानी वो सिटी अपना जो है अबूज़र सलमान न्याज़ी साहब ने ये एक्सप्लेन किया है कि जो ये ख़त इलेक्शन कमीशन वाले जिसको बुनियाद बना के हमारी अक़लियती और ख़वातीन की सीटें हमें नहीं देना चाह रहे, वो ख़त इस मकसद के लिए नहीं था। वो तो इलेक्शन कमीशन का जो ख़त आया था कि आप जनरल इलेक्शन में 5% टिकटें ख़वातीन को दें, तो उसका हमने जवाब लिखा था। तो ये इलेक्शन कमीशन का जो लेटर दिखा के उसका फ़ैसला करना, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। नाज़रीन, एक निजी टीवी के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास आज 29 फरवरी 24 को सुबह 10 बजे तलब किया गया है। यह इजलास कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानब से तलब किया गया है। कौमी असम्बली का इजलास आर्टिकल 91 के झैली शिक 2 के तहत तलब किया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा मुबैना तौर पर कि शाम 5 बजे तक सदर मुमलकत के अहकामात का इंतज़ार किया गया था,
मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि कौमी असम्बली का ये अजलास सदर मुमलकत की जानब से तलब न किए जाने पर कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने खुद तलब किया है, जिसका नोटिफिकेशन बाद में जारी किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, मुबैना तौर पर इतला है कि सदर मुमलकत साहब ने भी समरी पर दस्तखत करके समरी लुटा दी है। बहरहाल अभी ये खबर कन्फर्म नहीं हो सकी, मुबैना तौर पर इतला है। नाज़रीन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुताबिक आज 29 फरवरी 2024 को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तमाम अरकान कौमी असम्बली के अजलास से पहले 9 बजे सुबह हर सूरत असम्बली हाल पहुंचने की हिदायत की गई है। यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अपने अरकान हैं उनको उन्होंने कहा है कि अजलास से 1 घंटा पहले, यानी 10 बजे अगर अजलास होना है तो आप 9 बजे, पौने 9 बजे तक वहाँ असम्बली हाल हाज़िर हो जाएं। कल पार्लियामेंट्री पार्टी का कोई इजलास असम्बली हाल के अंदर नहीं बुलाया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान इकट्ठे कौमी असम्बली पहुँचेंगे। पार्लियामेंट के अंदर भरपूर तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। नाज़रीन, एक इतला के मुताबिक बानी PTI ने IMF को ख़त लिखा है और हालिया होने वाले जनरल इलेक्शन 2024 के 30% हलकों के ऑडिट का कहा है, मुतालबा किया है। बानी PTI ने मज़ीद लिखा है, चूँकि मौजूदा बनने वाली हुकूमत मैंडेट के ज़रिए, जाली मैंडेट के ज़रिए आ रही है, खदशा है कि ये IMF से लिया जाने वाला कर्जा सही तरीके से फलाही कामों पर खर्च नहीं कर सकेगी। लाहौर में बगैर लाइसेंस, बगैर हेलमेट और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ करने का हुक्म दिया गया है। CTO लाहौर का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन करने का हुक्म हुआ है। उन्होंने कहा है कि लाहौर बगैर लाइसेंस गाड़ी, मोटरसाइकिल चलाने वाले और कम उम्र बच्चों को गाड़ी या मोटरसाइकिल देने वाले किसी माफ़ी के मुस्तहिक नहीं हैं। कम उम्र ड्राइविंग पर मुकदमात की बजाय उनकी गाड़ी या मोटरसाइकिल थाने में बंद करने का हुक्म दिया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि बगैर लाइसेंस, बगैर हेलमेट, वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपये जुर्माना होगा। हादसात की रोकथाम और महफूज सफ़र को यकीनी बनाने के लिए सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाएं। वालिदैन अपने कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग की इजाज़त हरगिज़ न दें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन मियाँ असलम इकबाल ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में लिए गए हल्फ के बाद तमाम अरकान असम्बली को मुबारकबाद दी है और भरपूर उम्मीद का इजहार करते हुए कहा है कि अली मीन गंडापुर, जो कि एक नज़रियाती कारकुन है और अवाम का इत्मीनान हासिल करके ईवान में पहुँचे हैं और जिनकी काबिलियत सिर्फ मरूसी सियासी जानशीनी होना नहीं है, उनकी ज़ेर निगरानी खैबर पख्तूनख्वा पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करके मॉडल सूबा बनेगा और अवामी फलाह के कामों पर पूरी कुव्वत से वसाइल खर्च किए जाएंगे। नाज़रीन, दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर, हमारे वतन अज़ीज़ पर अपनी मेहरबानी फरमाए और हमारे सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़
سبسکرائب کر دینا، لائک کر دینا اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے بھی آگاہ کرنا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔